Okay. Good evening, everyone. I think it's the sixth lecture for the topic uh, ray optics, and I think fourth lecture for refraction, and first lecture for dispersion. So, what do you mean by dispersion? That is the first thing. Dispersion is the phenomena by which white light split into seven constituent color. Acha, am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So split into seven constituent color. Like if we see a prism, let A is the angle of the prism. Now, if we have a white ray, now when this white ray passes through prism, it's split into seven constituent color. If it is a screen, this phenomena is called dispersion. So first thing is that why these things happen, why when the white ray passes through a prism, why it split into seven constituent color. So for that, we know wavelength of red is maximum and wavelength of violet is minimum. Is it okay for everyone? Yes, sir. At the same time, from Cauchy's, Cauchies, Cauchy's formula, wavelength is inversely proportional to refractive index. So if wavelength is inversely proportional to refractive index, so refractive index of the red is minimum and refractive index of violet is maximum. Now, deviation for small prism, deviation is n minus 1a, that we already prove it in the minimum deviation with a special note. From this we realize del is directly proportional to refractive index. So it is now cleared the refractive index of violet is maximum and red is minimum. So deviation for the violet is maximum and red is minimum. So what we can say, if this one is my original ray, see for the violet deviation is maximum and for the red the deviation is minimum. Are you getting my point? Yes, sir. Everyone, you understand? Yes, sir. Okay. Now, next heading is angular dispersion. Angular dispersion. Angular dispersion. So if we use this one, so what we have, deviation for violet, deviation for red, deviation for violet is n violet minus 1 into angular prism, n red minus 1 into angular prism. And in general, if we write deviation, that is n minus 1 into a, actually this is called the mean deviation. So basically in mean deviation, what happened, sometime in examination, examiner give you the mean deviation, then it's very good. Sometime they directly not give you the mean deviation, they give you the directly does not give you the refractive mean refractive index, they give you the violet and red. So if they give you the violet and red, so then the mean refractive index, how you get it, violet
plus red by 2. I hope I am able to clear it, what I want to say. Is it okay, everyone? Yes, sir. वायोलेट रेड और ये नॉर्मल या मीन है, इस मीन का ये एन का वैल्यू कभी कभी दे देता है, कभी कभी ये नहीं देके ये दोनों दे देता है, एक्सट्रीम दे देता है, दोनों को ऐड करके 2 करेगा तो एवरेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? ये जो डेविएशन एंगल है, ये दोनों का जो बीच का जो एंगल है, ये दोनों का जो बीच का एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर dispersion, which is represented by the symbol theta. Clear? So what do you mean by angular dispersion? Maximum deviation violet minus minimum deviation red. Clear? So what is the definition of angular dispersion? The angular dispersion, the angle of deviation between the two extreme colors is called angular dispersion. Is it clear? Yes, sir. तो दो एंगुलर डेविएशन का, दो एक्सट्रीम एंगुलर डेविएशन का जो बीच का जो एंगल है, जिसको बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्शन. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से violet minus 1 into A minus red minus 1 into A, violet minus red into A. Is it clear? Yes, sir. So I think it's clear for all of you how you get the value of angular angular dispersion. And what do you mean by angular deviation? एंगुलर डेविएशन जो है, इसको मीन डेविएशन भी बोला जाता है. मतलब क्या हो गया? डेल n minus 1a. Is it clear? And how you get the value of n? From this one. Is it clear? Is it okay? Yes, sir. Okay. So then next heading is dispersive power. Next heading is dispersive power. So how you define dispersive power? Dispersive power is defined as the ratio of angular dispersion to mean deviation. Dispersive power is defined as represented by the symbol omega. Dispersive power is defined as the ratio of angular dispersion to mean deviation. Angular dispersion to mean deviation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So on that basis, angular dispersion NV minus NR A by N minus 1A, which is equals to NV minus NR by N minus 1. Done? इसका यूनिट रेडियन में होना चाहिए, इसका यूनिट रेडियन में होना चाहिए, ये यूनिट लेस है. इज इट क्लियर? Yes, sir. আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব জানুয়ারির মধ্যে সিলেবাস কমপ্লিট করে দেওয়ার. আচ্ছা,
Now combination of prism. So देखो combination of prism मतलब क्या है कि you have two prism. Suppose you combine two prism like this. Prism angle A1 at A2. Refractive index of the prism N1 and N2. यहाँ पे जो N1 and N2 है, ये तुम्हारा एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेड एंड वायोलेट का +/2, ठीक है। मतलब अगर डायरेक्ट n का वैल्यू दिया है तो समझ लेना वो एवरेज दिया है, और अगर रेड एंड वायोलेट दिया है सो प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 यू गेट द आंसर। दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए बोला जाता है एक को क्राउन ग्लास, एक को फ्लिंट ग्लास। मतलब दीज आर द क्राउन एंड फ्लिंट आर द टू डिफरेंट ग्लास विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब देखो इसके अंदर से लाइट जाएगा तो दो काम हो सकता है, एक हो सकता है टोटल डेविएशन दैट इज del1 प्लस del2, और टोटल डिस्पर्शन दैट इज θ1 प्लस θ2। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जब दो चीज है तो दो केस हो सकता है। तो केस वन इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। मतलब जब लाइट बाहर आएगा तो लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? कैसे? Yes, sir. जैसे मानो ये मेरा लाइट है, ये 7 कलर में स्प्लिट हुआ, फिर ये ऐसे करके गया। आई जस्ट गिव यू अ नॉर्मल, एग्जैक्टली नहीं, तो मानो ये ऐसे चला गया, तो दिस इज द टोटल डेविएशन। लेकिन देखो व्हाइट रे था तो ये व्हाइट रेज ही हो गया है ना? तो रे देखो स्प्लिट नहीं किया है, so that's why it's called deviation without dispersion. Is it clear? Yes, sir. Good. Yes, हाँ, sir. very good. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो विदाउट डिस्पर्शन मतलब मेरा θ0, विदाउट डिस्पर्शन मतलब मेरा θ1 प्लस θ2 मिला के 0 है ना? Yes, sir. मतलब NV1 माइनस NR1 A1। देखो मैं इस साल सब में n यूज कर रहा हूं, मैं पहले म्यू यूज करता था, लेकिन जब से 10th को पढ़ाया अब मुझे लगा कि 10th में भी NCERT में n यूज किया है, फिर 11th 12th में भी n यूज किया है, तो मैं थोड़ा अपना रिजिडिटी को घटाया, तो मैं फिर म्यू की जगह पे n यूज किया। तो कहीं पे नोट में शायद तुम्हें म्यू दिख जाए, तो बात एक ही है, म्यू एंड n दे आर द सेम थिंग। तो डोंट कंफ्यूज कि वहां पे म्यू बोला था n बोला है, सर ने म्यू लिखा है, ये कहाँ का रामायण महाभारत गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रामायण महाभारत जैसा था वैसा ही है, मैंने सिर्फ मतलब हिंदी के जगह पे उर्दू वर्ड यूज किया है, दैट्स इट। सिंबल अलग कर दिया है बस। NV2 माइनस NR2 A2 is equals to 0. Can we write this? So A2 is minus NV1 NR1 by NV2 NR2 A1. Is it okay? Can we get this relation? Yes, sir. Okay. अच्छा, तो अगर ये ओके है, अगर ये ओके है, तो टोटल डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 क्या हो गया?
n1 minus 1 a1 प्लस n2 minus 1 a2, जो कि n1 minus 1 a1 plus n2 minus 1 minus nv1 minus nr1 by nv2 nr2 a1। तो यहां से देखो, यहां से मैं अगर n1 minus 1 a1 को कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस nv1 माइनस nr1 बाई n1 माइनस 1 बाई, ये पहले से है, nv2 माइनस nr2 बाई n2 माइनस 1। समझ में आया यहाँ तक? Which we can write del is equals to this one, which is del 1 minus omega 1 by omega 2. Clear? Okay, everyone? Yes, sir. Got it? Yes. तो अब अगर मैं इसका, so you understand कि deviation without dispersion कैसे लाया? So obviously my next heading is, ये लिखा है, सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. So after that, my next topic is next topic is dispersion without deviation. Dispersion without deviation. तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब स्प्लिट करेगा लेकिन डेविएट नहीं करेगा, मतलब उसका मीन रे लगभग सेम रहेगा। इसको टफ ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है, तो आई एम ट्राई। ऐसे आया, मानो ऐसे गया। अब देखो ये वाला और इसका जो मीन है ये एकदम पैरेलल होगा, और मोटा मोटी ऐसे करके मानो स्क्रीन अगर हम देते हैं तो ये वायलेट, ये रेड। समझ में आया कि रे स्प्लिट किया, रे स्प्लिट तो किया लेकिन ये नहीं हुआ। क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके। है सर। तो यहाँ पे ये भी A1 है, A2 है, N1 है, N2 है। सो विदाउट डेविएशन, मतलब डेल, that is del 1 plus del 2 is 0, that is n1 minus 1 a1 plus n2 minus 1 a2 equals to 0. So a2, that is minus n1 minus 1 by n2 minus 1 a1. Is it okay? So total dispersion theta 1 plus theta 2, that is n v1 minus n r1 a1 plus n v2 minus n r2 a2, which is n v1 minus n r1 n1 plus n v2 minus n r2 n1 minus 1 by n2 minus 1 a1
So we can take কি কমন নেওয়া যায় বলতো? n1 minus 1 a1 if we take common, देखो यहाँ पे नहीं है, so nv1 minus nr1 by n1 minus 1 minus, यहाँ पे देखो ये कॉमन ले लिया है, nv2 minus nr2 by n2 minus 1, मतलब del 1 omega 1 minus omega 2 is del. Done? আমি দেখলাম সুজিত স্যার কিন্তু অ্যাটলিস্ট ভালোভাবে আরাম से पढ़ाए। देखो काफी सुंदर एक न्यूमेरिकल है। आई वांट टू रीड द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। Okay, question is a thin prism P1 with angle 4 degree, thin prism P1 with angle 4 degree and made from glass of refractive index N1 1.54, ठीक है, is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.72, P2 refractive index 1.72, ठीक है, to produce dispersion without deviation. I repeat, to produce dispersion without deviation. So who is zero, theta or del? Dispersion without deviation, who is zero, theta or del? कौन जीरो है, थीटा और डेल? थीटा। अरे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट जो है वो जीरो है ना, तो कौन जीरो होगा, थीटा और डेल? डेल। डेल इज जीरो, दैट मींस डेल 1 তুমি তো ডেলি বললে, তুমি কনফিউজ করে দিলে না। কে একজন থিটা বললো? আমার ডেলটা শুনিনি আমি, ডেলটা আমি শুনিনি, ডেলটা আমি শুনিনি। ও আচ্ছা শুনিনি। প্রডিউস ডিসপারশন উইদাউট ডেভিয়েশন, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্রিজম? সো কোশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ পি। দেখ কত সোজা কোশ্চেন, এন্ড আমি তোকে আবার বলেছি দেখ এই ধরনের কোশ্চেন দেবে, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম ইওর লিমিটেড ইজ আপ টু 10 ডিগ্রি, দেখ 4 দিয়েছে। তো নাও n1 minus 1 a1 মানে 4 ডিগ্রি, তাই না, প্লাস n2, আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট ভ্যালু লিখতে পারি, 1.54 minus 1 into 4 degree plus 1.72 minus 1 into P2 equals to 0. So 0.72 into P2 equals to 0.54 into 4 with minus sign. P2 is minus 0.54 into 4 by 0.72, which is minus 3 degree. Now, anyone tell me, what do you mean by that minus sign? Hello? নেগেটিভ ডেভিয়েশন তো No, no. Prism angle তো একটা যদি আমি সোজা ধরেছি তাহলে আরেকটা উল্টো না? হ্যাঁ হ্যাঁ। Understood? So here negative sign represent, the second one is inverted prism. Okay. Yes sir. तो this part complete. Now आज हम एक बहुत ही अच्छा चीज सीखेंगे। ये बुक में इसका 7 टाइप है, ठीक है, 7 टाइप का ये डिराइवेशंस है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले एक करेंगे और अगर टाइम मिला तो एक दो डिस्कस करेंगे,
नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक दो और करेंगे, और बाकी तुम लोगों को करना है, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, सब कोई एक करा के छोड़ देता है, लेकिन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है वही वाला आएगा। टोटल 7 इसका टाइप है, एंड द ओनली डिफरेंस इज द लैंग्वेज। जैसे क्या कहते हैं उसको, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, डेंसर या रेयरर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकता है। तो हम लोग मेन चीज सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले तो देखो, मैंने ऐसे करके एक सरफेस लिया है, इसको कर्व सरफेस किया, तो ऑब्वियसली देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब देखो, मानो मानो मैंने इसको 1 इसको 2 माना है, हाँ, और अगर मैं बोलूं 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस में। इसका हेडिंग है कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हाँ, तो ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दूं, अब कौन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, इसका? हेलो, यस सर। तो ये कॉन्वेक्स हो गया कॉनकेव। समझ में आया मेरा बात? यस सर। क्योंकि अब किसका, इसका ज्यादा है ना, तो डेंसर मीडियम कैसा दिखने में हुआ, देखो ऐसा दिखने में हुआ ना, ये डेंसर हो गया ना इनटू, है ना? क्लियर? यस सर। लेकिन इसमें बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि वो बोलते हैं अरे देखने में ये वाला टान रहा है, फिर ये इसी को उल्टा कर दिया। तो इस कंफ्यूजन तुम्हारा ना हो, मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक, कि बेसिक ये है कि बेसिक ये है कि अगर जो सेंटर है अगर डेंसर मीडियम की तरफ हो उसको कहता है कॉन्वेक्स, अगर सेंटर डेंसर मीडियम से अवे हो तो कॉनकेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, अगर मैं एक डेंसर मीडियम ये बनाऊं, उसका सेंटर किधर आएगा, इधर, तो अगर सेंटर डेंसर से अवे जाए तो कॉनकेव, अगर सेंटर सेंटर डेंसर की तरफ रहे तो कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन ये सब तुम लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए है, जब तुम करोगे यू कैन फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, यू कैन फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। वो ये है, जो डेंसर मीडियम है उसको ऐसे शेडेड लाइन दे दो। तो अब जब शेडेड लाइन दे दिया मतलब ये डेंसर है ये रेयरर है, फिक्स हो गया। हाँ, यस सर। एक्चुअली देखो इसका उल्टा जो है, अगर हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, इसका उल्टा ये है ना? मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो गया डेंसर, और सेंटर किधर है, इधर, तो ये हो गया कॉनकेव। तुम्हारा डेंसर, रेयरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स का मुद्दा समझ में आया? यस सर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेंसर, रेयरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स का झमेला समझ में आया? अगर सेंटर की तरफ होगा तो कॉन्वेक्स, मैं दोनों को कॉनकेव लिखा हूँ, कॉन्वेक्स, और अगर सेंटर डेंसर से अवे है तो कॉनकेव। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस इज सर। इट क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब ये जो मैंने बोला जो 7 तरीका है, 7 तरीका से तुम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल हो सकता है।
तुम लोगों के पास शीट भी है, तुम लोग देख लेना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? बुक जो है फॉलो किया है, जितना 12th स्टैंडर्ड का बुक है, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक लो, एस एल अरोड़ा लो, प्रदीप लो, जो भी लो, तुम्हारा दिनेश लो, ये सब का सब क्या किया है, ये जो डेंसर मीडियम है इसको फर्स्ट मीडियम माना है, और जो रेयरर मीडियम है इसको सेकंड मीडियम माना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस यस तो सर। मानो इसको फर्स्ट मीडियम माना, इसको सेकंड मीडियम माना। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, जो फॉर्मूला होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखता हूं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, जो फॉर्मूला मिलेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तुम्हारा प्लस माइनस का साइन में चेंजेस आएगा। तो तुम जब वो 7 क्वेश्चन देखना, 7 जो डिराइवेशंस है, बुक में 7 का 7 दिया है, तो उसमें देखोगे किसी में प्लस, किसी में माइनस, किसी में प्लस, किसी में माइनस। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, ये साला एग्जाम में कौन वाला था, प्लस वाला था, माइनस वाला था, माइनस वाला था, प्लस वाला था, 3 मार्क्स चला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? यस सर। हमें ये सब कंफ्यूजन कुछ नहीं लिखना है, हमें ये सब कोई कन्वेंशन नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जिधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो फर्स्ट मीडियम, जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा वो सेकंड मीडियम। अगर मानो बोला है ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, तो इसको मैं N1, इसको N2 माना। मेरा बात समझ में आया? यस सर। And we can say according to question, as this one is the denser medium, so we can say N2 is greater than N1। मैं एकदम फॉलो कर दिया सब कुछ। क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। रेयरर कैसे साबित करोगे? इसको डेंसर करके, यस सर। और डेंसर जो है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ। और अगर यही क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, मैं ऑब्जेक्ट को यहां दूंगा, इसको N1, इसको N2 मानूंगा, और लिखूंगा N1 ग्रेटर देन N2, कॉन्वेक्स मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इससे मुझे प्लस पॉइंट्स क्या होगा, मैं अगर इस फंडा को फॉलो करता हूं, मेरा सातों का सेम डिराइवेशन आएगा, सातों का सेम डिराइवेशन आएगा। N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R। क्या आएगा, क्या आएगा? N2 V, N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R। समझ में आया? सातों का सातों में। अदरवाइज किसी में देखना यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, किसी में दोनों प्लस, साला कंफ्यूजन, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा एग्जाम में याद रखेगा। और अगर तुम एक ही फॉर्मूला याद रखते हो, सो फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो you can use simply this formula to solve the numericals also। और तुम ये भी चेक कर लिया कि तुम्हारा वैल्यू अगर ये आ रहा है तो तुम्हारा सही है, अगर नहीं आया है तो कहीं पे गलती है। क्लियर? यस सर। तो क्या करोगे, जहां पे ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट मीडियम, और अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा ऑब्जेक्ट इज रेयरर और डेंसर, ऑन दैट बेसिस यू मेंशन, इफ दे से ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, so object N1 is less than N2, if the object is in denser medium, N1 is greater than N2। is it clear? everyone done? ठीक है, ठीक है, बुझे? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. now let's try। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं पढ़ना चाहता हूं, साथ है मैं पहला वाला करना चाहता हूं, और मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे सीखो कि एक ही से तुम लोग खुद ही बाकी 6 खुद ब खुद कर सको, खाली कंडीशन पर के। तो लेट्स ट्राई। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर
medium and the image formed is real. क्या क्या बोला है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोला है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल होगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो मैं ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, और मैंने क्या बोला, जहां पे ऑब्जेक्ट रखेगा उसको फर्स्ट मीडियम, जिधर जाएगा उसको सेकंड मीडियम। ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, सो n2 ग्रेटर देन n1। हो गया? हो गया? यस। अब देखो सेंटर मेरा यहां पे है, तुम्हें एक पॉइंट पसंद करो, एक पॉइंट जहां से तुम ये C निकाल सकते हो, बिकॉज C इज ऑलवेज नॉर्मल। समझ में आया? कोई भी एक पॉइंट को C से स्ट्रेट लाइन डालो, डाला। अब देखो ये और इस पॉइंट को स्ट्रेट ऐसे कनेक्ट करना है। किया? किया कि नहीं बोलो? ये रे एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन when the ray travel from rarer medium to denser medium, it is moving towards normal or away from the normal? सर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द Rarer to नॉर्मल। denser, towards the normal। टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये इधर बेंड करेगा, इसको इतना ज्यादा बेंड करवा दो कि ये इस साइड आ जाए। आ गया? यस आ सर। गया? तो इमेज Yes, क्या sir. हो गया? रियल हो गया। हुआ? यस सर। यही अगर क्वेश्चन में बोलता, इसके बाद वाला पे ही है, सेम थिंग फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो रूल के हिसाब से जब रे रेयरर से डेंसर जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल तो जाएगा, तो ये जा रहा था, थोड़ा सा बेंड कर दो तो कहां जाएगा? इमेज वर्चुअल हुआ कि रियल हुआ? बुझे? हेलो? यस सर। अंडरस्टूड? हाँ, रियल बोलेगा तो पूरा बेंड करवा दो, वर्चुअल बोलेगा तो हल्का बेंड करके बैक मारो। समझा मेरा बात? हाँ सर। Yes, sir. अब अभी तुमको वर्चुअल बोला नहीं है, तो मैं ये बेंड नहीं करूंगा। समझ में आया? फिर वही कहानी, Yes, ये sir. है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। यहाँ से एक इस पॉइंट को ए मान लो, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप करना है, इस पॉइंट को पी मान लो। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब तुम्हें सिर्फ याद रखना है AOC, AOC एक हुआ, और एक याद रखना है AIC, और एक याद रखना है AIC, AIC ट्रायंगल, AOC ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल याद रखना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है। एक AC कॉमन, एक बार ऑब्जेक्ट एक बार इमेज, तुम ऐसे भी करके याद रख सकते हो। इसको याद रखने के लिए AC कॉमन O, AC कॉमन I। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, ये जो एंगल है मेरा, ये इंसिडेंट एंगल है I, और ये जो एंगल है मेरा, ये इमर्जेंट एंगल है। मतलब सॉरी, इमर्जेंट नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल है, मतलब R। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इन ट्रायंगल AOC एक्सटर्नल एंगल कौन है? I, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या लिखूंगा? I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, एंड इन ट्रायंगल AIC, AIC एक्सटर्नल एंगल कौन है?
ट्रायंगल AIC तो मैंने एक चीज गलती किया है, ये जो इंसिडेंट एंगल किसके साथ बना, नॉर्मल के साथ? ऐसे नीचे टिका होगा एंगल टा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे बोलो एक्सटर्नल एंगल क्या है? बीटा AIC जनो P। बीटा इक्वल्स टू R प्लस गामा, है ना? हाँ सर। जैसे मैंने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल निकाला, मेरा टारगेट रहेगा जो भी दिया रहेगा उससे I एंड R निकालो। समझ में आया? यस सर। सिर्फ याद रखना है AC एक बार O लेना है, AC एक बार I लेना है, यहां से मुझे I एंड R का वैल्यू निकालना है। क्लियर? यस सर। अब हम लिखेंगे फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? N1 sin I स्नेल्स लॉ। N2 sin R। क्लियर? अब हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्या? एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। मैंने तुम्हें पहले ही बोला, तुम चाहो तो पहले ही लिख सकते हो। दो चीज लिखना, एक वी ड्रॉप अ नॉर्मल एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? सेम लाइक मैंने बोला था ना, मिरर में क्या था याद है? मैंने बोला था कुछ Yes, sir. कॉमन पॉइंट्स है। वी ड्रॉप एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वी मेजर ऑल डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? पोल। पोल इंस्टेड ऑफ एन। ठीक है? ठीक है? अच्छा, एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये तुम पहले ही लिख लो। हाँ, एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू tan थीटा होता है ना, एंड cos थीटा नियरली इक्वल्स टू 1। मतलब जहां पे एंगल देखोगे वो सब का सब क्या हो जाएगा? साइन बिकम थीटा, मतलब साइन का जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा, है ना? एज एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कैन वी राइट N1 sin I के जगह पे I, N2 sin R के जगह पे R? कैन वी राइट? यस सर। अब I क्या है मेरा, देखो तो, अल्फा प्लस बीटा, N2 R क्या है? बीटा माइनस गामा, है ना? यस सर। अब तुम देखो, अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा, है ना? यस सर। अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा। अब देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, n के जगह पे p लेना है, सो PA बाय PO, कैन वी राइट? बीटा क्या लिखेंगे बोलो? PA बाय PC। ग्रीनी, ग्रीनी, है सर, है सर, ये वो PC लिखे दिस ना, ना सर, PA बाय PI, PC not PC। So can we put this value? Can we put this value? यस सर। Yes, So sir. N1 instead of alpha, PA by PO, beta, PA by PC, N2 beta, PA by PC minus gamma, PA by PI। Done? अब देखो, ये जो मेरा PO है वो ऑन द डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है? बोलो। PO रे इधर है, इधर जो गया प्लस ना माइनस, प्लस ना माइनस, माइनस। ये
on the direction or opposite direction? Positive of the direction of the ray. Incident ray. ये Incident ray, direction of incident ray. Positive of it. हो गया? PA मैं Yes, sir. सबसे उड़ा सकता हूँ, है ना? Yes, sir. So N1 instead of PO we write minus U, plus N1 instead of PC we write plus R, N2 by plus R minus N2 by PI V. तो अब क्या हुआ देखो, इसको इधर ले आओ. So N2 V minus N1 U, N2 minus N1 by R. समझ में आया? है ना बेहतरीन? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 मिनट के अंदर अगर तुम्हें इस पूरा फॉर्मेट पता चला, 2 मिनट के अंदर मैं देखो सेकंड वाला प्रूफ करा के दिखाता हूं कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑब्जेक्ट इज एट रेयरर मीडियम बट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. तो मुझे ये नहीं चाहिए. क्यों? इमेज रियल तभी होगा जब इस साइड में आएगा. तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेंड करना है. यही मेरा आर होगा और इसको मैं ऐसे करके बैक ले जाऊंगा ना. यहाँ पे आई होगा कि नहीं, बोलो? होगा? Yes, sir. तो अगर ये आर होगा, देखो ये एक लाइन है, ये नॉर्मल वाला लाइन है, तो ये एंगल आर, तो ये एंगल भी आर होना चाहिए. ये वाला होना चाहिए ना, आर, और ये वाला आई. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. तो अब मेरा पहला क्या था, AOC. आई इज अल्फा प्लस बीटा, एकदम सही है. ACI है ना. R इज बीटा प्लस गामा प्लस बीटा. यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? sir. तो यहाँ पे Yes, इसका sir. जरूरत ही नहीं है. सीधा प्लस, सीधा प्लस, सीधा प्लस, है कि नहीं? हाँ, अरे sir. एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ टू इंटरनल एंगल. हाँ, sir. ठीक है? तो फिर फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस यहाँ पे एक प्लस साइन, यहाँ पे एक प्लस साइन, ये जैसा का तैसा, यहाँ पे प्लस साइन. अब मुझे बोलो भी का वैल्यू प्लस ना माइनस? Negative, minus. तो बेसिकली क्या हुआ देखो, मेरा ये नेगेटिव, पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था. अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? Negative. कहानी वही हो गया ना जहां से Yes, शुरू sir. हुआ था. बस डन. कितना टाइम लगा बोलो? समझा? Yes, So sir. that's why it's very very important. मैं बोलूंगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, जनरली यही वाला पूछता है, बट फिर भी सीखना अगर कुछ है, मतलब मार्क्स के लिए नहीं, सीखना है सातों का सातों. और देखो जहां ये कॉनकेव के जगह, कॉन्वेक्स के जगह पे कॉनकेव हो जाएगा, जहां कॉन्वेक्स के जगह पे कॉनकेव हो जाएगा, इमेज हमेशा वर्चुअल sir. ही आएगा. ठीक है? तो इसीलिए इसका 4 केस आता है, उसका 3 केस आता है. ठीक है? तो हर एक का पढ़ना, प्रोसेस मैंने बता दिया कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेयरर मीडियम, उसको N1 मानो, N1 greater than N2, N1 less than N2. If the object is in denser medium, N1 greater than N2. You get the, every time you get the same answer. सातों का साथ. बुक में सब अलग अलग क्या, आई डोंट नो व्हाई दे यूज दिस वन. 7 में से 4 एक साइन, बाकी 3 में उल्टा साइन. तो बच्चा लोग भी कंफ्यूज करता है. तो हम लोग इसके साथ साथ नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल सॉल्व भी देखेंगे. इसके ऊपर हम लोग कितना सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल कर सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. आज कुछ